Hello students, in the previous two videos we have already covered movement along the demand curve. Now it is time to understand shift in demand curve. Movement along the demand curve happens due to the change in quantity demanded. But as we have read, there are two concepts. One is change in quantity demanded and another one is change in demand. So as we have already discussed about change in quantity demanded, now we will move towards change in demand. So as we have already studied that change in demand occurs due to change in factors other than its own price. मतलब अपने ही प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ कांस्टेंट, बट देर आर सर्टेन चेंजेस ड्यू टू the change in other factors. Okay, what are the other factors that also we have discussed? That is income of the consumer, price of related goods, it constitute both substitute and complementary goods. So इन सब में changes आने से अगर हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ भी बदलाव नहीं लाया, फिर भी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड उससे इन्फ्लुएंस होगा. तो चेंज इन डिमांड में हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो तरह के हो सकते हैं. वन इज राइटवर्ड शिफ्ट एंड अनदर वन इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट विल टेल अस दैट whenever there will be decrease in demand, whenever there will be decrease in demand because of changes in the factors other than its own price, then there will be decrease in demand and the demand curve will shift towards leftward. देखिए, मूवमेंट along the demand curve में हमारा कोई नया डिमांड कर्व क्रिएट नहीं होता था, उसी एक में हम लोग मूव करते थे ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस. अब इसमें तो प्राइसेस बदल नहीं रहे हैं, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाएंगे. तो अगर डिक्रीज होता है इट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अगर इंक्रीज होता है इट इज राइटवर्ड शिफ्ट. ओके, सो आवर प्राइस इज 20 रुपीज. ओके, आवर प्राइस इज 20 रुपीज एंड द डिमांड इज 150 यूनिट्स. आवर प्राइस इज 20 rupees and our demand is 150 units, as you can see above. Okay, 150 units. Now the price is even now 20 rupees but the demand is 100 rupees. अब डिमांड कम हो गया है, क्यों? If our substitute has reduced its price, then our consumers will move towards that product which is cheaper than ours. या फिर अगर हमारे रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो उसका डिमांड घटने के साथ साथ हमारा डिमांड भी घटना शुरू हो जाएगा. ठीक है, या फिर कंज्यूमर का इनकम कम हो गया है. लाइक नाउ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन द इनकम ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिड्यूस्ड. ऑब्वियसली आवर प्रिफरेंसेस वी हैव रिड्यूस्ड. तो हमें जो चीज़ अभी नेसेसरी नहीं लग रहा है हम उसको नहीं खरीदेंगे. देन देर विल बी डिक्रीज इन डिमांड. सो इन दिस केस इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड. नाउ if the price is 20 rupees and demand is 100 units, after 5 days also the price is 20 rupees but the demand increases to 150 units, then the curve will move towards rightward. The curve will move towards rightward. At what situation? Suppose consumer का income बदल गया या फिर consumer का taste and preference हमारे फेवर में आ गया है, या फिर हम कहेंगे हमारे सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ गया, तो उसके जो जितने कस्टमर्स थे हमारे प्रोडक्ट्स के तरफ सेम प्राइस में अट्रैक्ट, वो भी 20 रुपीज़ में बेचता था, हम भी 20 रुपीज़ में बेच रहे थे. उसके 50 कस्टमर्स थे, हमारे 30 कस्टमर्स थे. ठीक, नाउ दे हैव इंक्रीज देयर प्राइस टू 25 रुपीज़. तो उसके कुछ 20-30 कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, हमारा डिमांड बढ़ जाएगा. तो क्यों? बिकॉज आवर सब्सटीट्यूट इंक्रीज्ड इट्स प्राइस. दैट्स वाई our demand has increased in the same price. Now let us see it with the help of graph. So first of all we will see leftward shift graph, then we will see the rightward shift graph. In the leftward shift graph you can see that the price OP is there, and at OP price we are demanding OQ unit. At OP price we are demanding OQ unit. Now with the same OP price, after few days the demand has reduced to OQ1.
and now the demand curve is not DD. The first demand curve is DD and the second demand curve is D dash D dash, as you can see in the graph. अब प्राइस तो वही सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा रिड्यूस हो गया है, तो क्या हुआ, DD से D डैश D डैश में वो शिफ्ट हो गया, पहले से दूसरे वाले में वो शिफ्ट हो गया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। ओके, और अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ जिसमें राइटवर्ड शिफ्ट है। प्रीवियसली आवर डिमांड वाज OQ एट OP प्राइस, नाउ द डिमांड इज OQ1। देखिए इधर शिफ्ट हो गया है वो OQ1। प्रीवियसली द डिमांड कर्व वाज DD, जिसमें आप पॉइंट A भी देख सकते हैं, वही 20 रुपीज़ में। नाउ द डिमांड कर्व इज D डैश D डैश एट OQ1 अमाउंट। अब इंक्रीज हो गया है, प्राइस तो सेम है लेकिन कुछ हमारे फेवरेबल चेंजेस हैं। तो डिक्रीज किन कारणों से हुआ है और इंक्रीज किन कारणों से हुआ है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।